it can have a positive impact on the development of energetics in future. Let's consider the main more than 4-6% of the building cost. Here is comparison of the better wind farm with wind farms of the classic type, harmony with existing buildings and the environment, the possibility of placement directly in an urban environment. There's no energy loss, remoteness from inhabited places, infrastructure cost, uses of 7% of energy when transmitting over distances, safety. No noise, low speed design ensures noiselessness. There is no infrasound. The presence of intense noise up to 70 dB and infrasound, which has an adverse impact on the nervous system of living creatures. Power generation is possible at wind speeds of 4 meters per second. The possible height of the building is more than 190 meters. The ability to use gravity energy storage. The possibility of airflow concentration. The larger the area of the plates, the more energy. Direction is carried out along a tangential line to the rotation circle of the plates. Workability doesn't depend on wind direction. Speed of rotation is 4-7 revolutions per minute. Vibrations are excluded. Here is application possibilities. Energetics is ready to make a step into the future. That expression of the experts of the International Forum Technoprom is the start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, but they provide themselves with 10% of energy. We do 200. It is a great discovery of yours. It needs development. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations to this. There is an open idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. Wherever the wind blows from the wind stream would get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up.
be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and even in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Your business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Nature Project. All right, welcome and have a very fantastic day. आज मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी। राइट, सबको खुशी हुई होगी। ओके, 2 दिन गैर मौजूदगी में कैसे हमने सेशंस को किए, अटेंड किया, राइट, और क्या इंफॉर्मेशन कुछ रही, राइट। और मैं विपुल जी का और यशवीर जी का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस चीज को मैनेज किया मेरी एब्सेंस में, राइट। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपनी कोर टीम वीटर इंडिया की तरफ से। ओके, मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी दिल्ली से। आज हम लोगों के पास में बहुत ही फंटेस्टिक इंफॉर्मेशन है अबाउट दी वीटर्स, राइट, और किस तरीके से हम लोग अगले 7 दिन इसके अंदर हम लोग जी जान से जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। आज हम लोग इसकी प्लानिंग करने वाले हैं, राइट। और मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, हम लोग बहुत ही नट सेल के अंदर आज का वीटर पावर प्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। उसको भी मैं ही फॉरवर्ड करूंगा थ्रू माय 5 पॉइंट्स अबाउट दी वीटर, राइट, कि 5 पॉइंट्स के अंदर 5 लाइन के अंदर वीटर को किस तरीके से समझा जाए। ओके, आज मैं वीटर के प्रेजेंटेशन को सेकेंडरी पार्ट में रखूंगा, सेकेंड पार्ट में रखूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आज का जो न्यूज, वीटर की जो न्यूज है अबाउट द दुबई एक्सपो एंड द अचीवमेंट्स, आज हम लोग उसको रिवील करने वाले हैं। ओके, हमारे लिए क्या वहां से अच्छी इंफॉर्मेशन, गुड इंफॉर्मेशन से आज के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, 2 टॉपिक हो गए। थर्ड टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं that what is unity, okay, in the ratio of 20% or 80%, what is unity ratio, और किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर काम करती है और किस तरीके से हम लोग वीटर के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 3 टॉपिक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, राइट। उसको प्लीज बहुत अच्छे से सुनिएगा आज के सेशन के अंदर। और सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं, जितने भी आज हमारे साथी हैं वो प्लीज करके इनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसको भी आज आप इनवाइट करना चाहते हैं आज आप इनवाइट कर सकते हैं, राइट। आज का सेशन बहुत ही रॉकिंग वाला होने वाला है, राइट। और चलो ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ में जो मेरे सहयोग देंगे
That is Mr. Vipul Kumar ji. Okay. Hello Vipul ji. Ready? Yes, Mohit. Thank you. Very Very good. much. Very good. ओके वेरी गुड फैंटास्टिक। तो आज के सेशन के अंदर जो भी लोग हमारे सेशन के अंदर पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा। ओके, वो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज कर लीजिएगा। ओके वेरी गुड। मिस्टर वीके राय जी मोस्ट वेलकम। रामा कृष्णा रेड्डी मोस्ट वेलकम सर, बहुत दिन बाद देखा है आपको, फैंटास्टिक। वीवो 1713 प्लीज अपने ओरिजिनल नेम के साथ में आइएगा, हैंड रेज कीजिएगा, तो उससे आसानी होती है लोगों को समझने में। मिस्टर विजयम MFP मोस्ट वेलकम। नेपाल सिंह पाल मोस्ट वेलकम सर। मनोज कुमार जी मोस्ट वेलकम। ओप्पो A3s मोस्ट वेलकम सर, रीनेम कर लीजिएगा। संजय फ्रॉम धनबाद मोस्ट वेलकम। आजाद खान जी मोस्ट वेलकम। हरि प्रसाद सेन जी मोस्ट वेलकम सर। ओके वेरी गुड। जो भी आज सेशन को पहली बार आप अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोग कितना बारीकी से चीजों को आप यहाँ पे समझने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आज कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर बंधु जी मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, तो बहुत ही ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा आज ट्विटर को अटैकिंग फॉर्मेट में, राइट, हम लोग आज अटैकिंग फॉर्मेट में चीजों को करने वाले हैं। 5 पॉइंट लिखे हुए स्क्रीन दिखाएं, अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल दिखाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो यस प्लीज अभी सभी लोग अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं और हम लोग चल रहे हैं आज के जो न्यूज लेटर जो इश्यू हुआ है कंपनी के ऑफिशियल कंफर्मेशन, ऑफिशियली जो कंपनी ने उसको हम लोगों के पास में जो मेल के थ्रू भी आया है, और कंपनी के आर्टिकल्स एंड न्यूज के अंदर भी आप इस इंफॉर्मेशन को आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। राइट, ओके, तो अभी मैं एक छोटी सी क्विज कर लेता हूँ बॉस। राइट, ठीक है, अभी सभी के हैंड्स डाउन कर देता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग 63 पार्टिसिपेंट्स हैं। प्लीज जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं आज के सेशन में, आप इनवाइट कर सकते हैं। एक बार फिर से सभी को बोल देता हूँ। ओके, सो यस प्लीज मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। विपुल जी प्लीज बताइएगा। ओके, हमारे लिए आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो यहीं से अभी पता लग जाएगा, अगर हमने इसको समझ लिया तो। विपुल जी मेरी स्क्रीन आ रही है, दिख रही है सर? All right, all right. वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक यू सर। सो मैं आर्टिकल को रिवील करने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट, क्या इंफॉर्मेशन है, वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है, और जिसको माध्यम बना के हम अगले 7 दिन तक, राइट भाई, अगले 7 दिन तक, ये 7 दिन ही क्यों, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, ऐसा मैसेज लिखा हुआ है, अगले 7 दिन तक हम लोग एक अच्छी बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। ओके, और कितने हेल्पफुल रहेगी, राइट। तो यस, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द विटर प्रोजेक्ट एट द एक्सपो 2020 दुबई वर्ल्ड एग्जीबिशन। राइट, ये तो हमारी समझ में आ गया, जो हमने विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन किया दुबई एक्सपो 2020 विटर वर्ल्ड एग्जीबिशन के अंदर, दुबई वर्ल्ड एग्जीबिशन के अंदर। ओके, वो सबको पता है, लेकिन उसका आउटकम क्या है? ओके, और उसका जो आउटकम है वो हमारे विटर शेयर्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारे पोर्टफोलियो पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ओके, ओवरऑल हमारी टीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं, रिवील करने वाले हैं। विपुल जी प्लीज। Yeah. अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अगर हम पढ़े तो कैसा रहेगा? Oh, fantastic. हाँ, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ मैं एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक एक पैराग्राफ कवर करते हैं, तो जिससे कि सभी लोगों को आसानी होती है उसको समझने में। ओके, तो प्लीज बस थोड़ा सा संयम रखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान होता है चीजों को जब हम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर उसको हम लोग स्टडी करते हैं। जो हमारी स्क्रीन पर है वही मैं आपको दिखाऊंगा इधर। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो हम लोग पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ इसको ट्रांसलेट कर करके पढ़ रहे हैं। ओके, प्रोजेक्ट टीम ने वीटर प्रस्तुत किया। ओके, दुबई UAE में वर्ल्ड एक्सपो 2020 में परियोजना जो इन्होंने लगाई थी वो इसको प्रेजेंट किया था जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की प्रदर्शनी में। ओके, वेटेक्स 2021 5 से 7 अक्टूबर चलने वाली 2021 तक, मतलब 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक चलने वाली प्रदर्शनी में
आगंतुकों, प्रतिभागियों और आयोजकों को परियोजना की सामग्री, ठीक है, इसके कार्यान्वयन और नई पवन ऊर्जा के विकास पर सामग्री प्रदान की गई। ओके, किसी को ये हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा, ऑब्वियसली मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम लोग अभी करते हैं। एक पेटेंट आविष्कार, एक पवन ऊर्जा परिसर पर आधारित संयंत्र, एक ऊर्जा अक्ष पवन ऊर्जा संयंत्र के साथ एक इमारत के एक मॉडल की प्रस्तुति आयोजित की गई, जिसमें पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने की तकनीक प्रक्रिया का खुलासा किया गया। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये आसान हो जाता है। द प्रोजेक्ट टीम प्रेजेंटेड द वीटर प्रोजेक्ट एट द वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई यूएई। अब इस एक्सपो के अंदर, एक एग्जीबिशन के अंदर वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट, वेटेक्स, ठीक है, 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट्स, ओके, ऑर्गेनाइजर जो थे वहां पे, ठीक है, प्रोवाइडेड, उन्होंने मटेरियल को प्रोवाइड किया वहां पर, ठीक है, उसका कंटेंट प्रोजेक्ट का दिया उधर, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है वो भी बताया, उसका डेवलपमेंट कैसे करना है फॉर द न्यू वाइंड पावर प्लांट बेस्ड ऑन द पेटेंट इन्वेंशन, जो कि एक पेटेंट आविष्कार है, इन्वेंशन है, एक वाइंड पावर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ए प्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉडल ऑफ बिल्डिंग, जो कि एक बिल्डिंग की फॉर्मेट में है, जिसमें कि एक वर्टिकल एक्सिस वाइंड पावर प्लांट लगा हुआ है, राइट, और उस टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है हवा के थ्रू, उसको रिवील किया गया सबके सामने। ओके, तो ये आपको एक पैराग्राफ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। विपुल जी, समझ में आ रहा ना प्लीज? Yes, yes, Mohit, right. वेरी गुड, ठीक है। एक बार दूसरा पैराग्राफ, यहाँ पे सिंपल सा है, बस कोई भी कर सकता है इसको, बहुत आसान है। ओके, दूसरा पैराग्राफ, प्रदर्शनी के ढांचे के भीतर शहरी संरचना की बहुस्तरीय प्रणाली के साथ पवन ऊर्जा परिसरों के साथ संयुक्त एक नए शहर की बुनियादी ढांचे के निर्माण का एक मॉडल प्रदर्शित किया गया था। ओके, समझिएगा, दोबारा से एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रदर्शनी के ढांचे के अंदर शहरी संचार की बहुस्तरीय प्रणाली, मतलब शहरी संचार की मल्टी स्टोरेज जो प्रणाली होती है, मल्टी स्टोरेज, ठीक है, प्रणाली के साथ पवन ऊर्जा परिसरों के साथ संयुक्त एक नए शहर की बुनियादी ढांचे के निर्माण का एक मॉडल की वहां पर पेशकश की गई। ओके, यह वर्तमान में शहर की प्रस्तावित बुनियादी ढांचा योजना के लिए एक रचनात्मक विचार है। वीटर जो है, राइट, वो एक नए शहर जब हम बसाते हैं स्तर पर एक रचनात्मक, राइट, एक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जहां पे भी हम लोग एक नई सिटी को डेवलप करना चाहते हैं, राइट, एक ऐसी सिटी जहां पर पूरी की पूरी वीटर की परियोजना के तहत काम करेगी। ओके, ऐसे वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया। ओके, यह अभिनव समाधानों के व्यापक वितरण को निर्धारित करने में सक्षम है, मानवता के लिए एक उच्च तकनीक भविष्य बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की प्रगतिशील प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य पूर्ण रूप से संयुक्त है। वास्तविक प्रदर्शनी में 2 परियोजनाएं शामिल थी, सबको पता है, दैट इज कॉल्ड वीटर, जो कि वाइंड एनर्जी बेस्ड है, ठीक है, और दूसरी है गोरोड एलियस, एक बहुस्तरीय संचार प्रणाली पर आधारित है। ओके, प्रस्तुत प्रदर्शनी ने प्रदर्शनी के आगंतुकों, वही पार्टिसिपेंट्स, ऑर्गेनाइजर, ठीक है, और जो प्रोवाइडर्स थे, का ध्यान आकर्षित किया। संयुक्त अरब अमीरात के प्रभावशाली व्यक्ति प्रदर्शनी से परिचित हुए। ये वर्ड इन्होंने ध्यान से सुनना, लास्ट में जो लाइन में लिखा है, संयुक्त अरब अमीरात के प्रभावशाली व्यक्ति। भैया प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? ऑब्वियसली जो वहां पे प्रिंस, शेख, लाइक दिस। ओके, तो ये चीजें हैं। अब हम एक बार जो कंक्लूजन है, ओके, हमारे वीटर पर क्या इसका पड़ने वाला है प्रभाव, वो एक बार देख लेते हैं। विपुल जी ठीक है? वेरी गुड। ओके, प्रदर्शनी में परियोजनाओं की प्रस्तुति के दौरान आगंतुकों, मतलब पार्टिसिपेंट्स को, विशेषज्ञों को और विशेषज्ञों के बीच प्रस्तावित नई बुनियादी ढांचा प्रणाली पर
चर्चा करने की संभावना के लिए पवन ऊर्जा भवनों के साथ एक एकीकृत बहुस्तरीय संचार प्रणाली के साथ दुबई का एक लेआउट बनाने के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए। दुबई इनोवेशन डिपार्टमेंट, विपुल जी आवाज आ रही है मेरी? दुबई इनोवेशन डिपार्टमेंट, यस राइट। हाँ, दुबई इनोवेशन डिपार्टमेंट दुबई की शहर की सीमा के भीतर इसे आगे की योजना बनाने की संभावनाओं के साथ इसको देखा गया। वर्तमान में प्रोजेक्ट टीम और जो इसके विशेषज्ञ हैं ने दुबई के निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र में अनुरोधित लेआउट को विकसित करना, डिजाइन करना और बनाना शुरू कर दिया है। ओके, जो लोग पूछ रहे थे बस खाली प्रेजेंटेशन दिखा के घर लौटा है या फिर वहां पे कुछ मिला हुआ वाला भी है, तो ये उसका आंसर है। अब मत पूछना कि बस खाली प्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ इंडिया से 2-4 लोगों को बुलाए, ओके, और कुछ नहीं किया। बहुत कुछ हुआ है वहां पे, बहुत कुछ हुआ है, समझने की जरूरत है। दुबई इनोवेशन की शहर की सीमा के भीतर इसे आगे की योजना बनाने की संभावनाओं के साथ पेश किया गया। वर्तमान में, अभी करंट में, ठीक है, परियोजना टीम और विशेषज्ञों ने दुबई के निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र में अनुरोधित लेआउट को विकसित करना शुरू कर दिया है। ओके, मतलब कि एक नई सिटी, दुबई के अंदर एक नई सिटी डेवलप बनाने का कार्य, ठीक है, उसके डिजाइन करना, उस पर बना काम करना शुरू हो चुका है। ये एक अच्छी न्यूज है हमारे सबके लिए। हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, बस ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। ओके, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे और आपके ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद, आज 18 तारीख है, बस इसीलिए 7 दिन बोला गया था, 25 तारीख इसीलिए बोली गई है। एक पोस्टर देखा होगा आपने, ठीक है, उसमें 25 तारीख इसलिए बोली गई। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद प्रस्तावित निवेश शेयरों की मूल्य में 5% की वृद्धि करने की योजना है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बॉस, बीटर के शेयर फिर से महंगे होने वाले हैं। ओके, और क्या कुछ महंगा होने वाला ये हम लोग विपुल जी से जानेंगे, राइट। निवेश प्रस्तावों के मूल्य में परिवर्तन संसाधन पर निवेश प्रस्तावों में परिलक्षित होगा। ओके, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं भैया, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते सर। With consideration to these circumstances, it is planned to increase the value of the proposed investment share by 5% 7 days after the publication of this news of this information. The change in the value of investment proposals will be reflected in the investment proposal on the resources. Right? तो यही है इसका जो कंक्लूजन है। ओके, जब जब कंपनी कुछ ना कुछ अचीवमेंट करती है तब तब शेयर का प्राइस बढ़ता है। ओके, तब तब हम लोग अगली स्टेजेस के अंदर जंप कर जाते हैं। ओके, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्या कुछ हमारे शेयर पैकेज के ऊपर, शेयर्स की काउंटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये हम लोग चलते हैं विपुल जी के पास जानने के लिए। विपुल जी अभी अगर हैं तो प्लीज एक बार आइएगा। ओके मैं थैंक यू। या थैंक यू, वेलकम सर। मुझे ये जो आज का जो गुड न्यूज आपने दिया है वाकई में काबिल तारीफ, लाजवाब। जो भी हमारे साथ में अभी तकरीबन 87 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में अवेलेबल है, मौजूद है। मैं उन सभी लोगों को दोबारा करके एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने आज के दिन में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिनको अभी भी हम डेली की डेली इंफॉर्मेशन हम आपको ये दे रहे हैं, पोर्टफोलियो के एजुकेशन के बारे में कंटिन्यू हम आपको फोकस करवा रहे हैं। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि हम अपने संपत्ति यानी कि जो डिजिटल जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से हम क्रिएट करें, इनका आभास जो कंटिन्यू हमारे साथ में पिछले 5 से 6 महीने में जो लोग हमारे साथ में कंटिन्यू इस टीम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको काफी चीज समझ में आ गई होगी कि वाकई में पोर्टफोलियो में कितनी ताकत होती है। आज हम उसके बारे में केवल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोहित जी ने अभी बात करी है कि डेवलपमेंट जिस तरीके से स्टेज बाय स्टेज जहां पर भी हमारी डेवलपमेंट होती जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग
कि हमारी शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेट है कि जितने भी लोग डे वन से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने शुरुआत के दिन में आपको बताया था, जब इनकी 14 स्टेज यानी कि 14.2 स्टेज कंप्लीट होगा, तब तक हम अपनी पोर्टफोलियो के अंदर 300% की ग्रोथ देख चुके होंगे, कर चुके होंगे। इन बातों का एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किस तरीके से है। इसका एग्जांपल आपके सामने आज मैं देना चाहूंगा, उसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। जब इनकी शुरुआत हम लोगों ने किया था, तो धीरे धीरे करके हर स्टेज के अंदर इनकी शेयर की कीमत यानी कि जो शेयर हम लोग बाय, जो प्री आईपीओ शेयर हम लोग बाय कर रहे हैं, उसमें कमी आती जा रही है। तो हर स्टेज के अंदर किसी में 2% की, किसी में 3% की, किसी में 2.5% की, ये एज होती जा रही थी इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। यानी कि जो पैकेज आपने चूज किया, तो उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसमें से 2%, 3% शेयर आपका धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था हर स्टेज के अंदर। क्योंकि जैसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर स्टेज के अंदर हमारा शेयर कम होता जा रहा है। मगर इन दिनों दुबई एक्सपो और दुबई के अंदर जो हलचल, वहां पर जो लैंड एक्विजिशन, वहां के बारे में सारी जो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक न्यू इंफॉर्मेशन विंड एनर्जी सिस्टम का एक और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भी, जब इसका पूरा अलग अलग जगह पे इनका मॉडल पेश होता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके इसी टेक्नोलॉजी की डिमांड कि ये 2.5% से जस्ट जंप करके ये 5% के अंदर इनकी वैल्यू ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर के अंदर आपको इनका प्रॉफिट गेन होने वाला है। इसका मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे अभी इनकी वैल्यू ऑफ ग्रोथ 5% के अकॉर्डिंग, अभी जो भी आदमी इस पैकेज को बाय कर रहे हैं, उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है, इसका सीधा सा उदाहरण आप ऐसे करके समझ सकते हैं। यदि मैं बड़े पैकेज से थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जो नॉर्मल व्यक्ति ले भी सकते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके छोटे पैकेज में आएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने $140 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पेड करके यदि कोई ले रहा है, तो डेफिनेटली कि उनको आज के दिन में 17,85,000 के समथिंग उनको 10 महीने की इंस्टॉलमेंट में भी लेता है, तो फिर भी उनको 17,85,000 उनको अभी के दिन में प्री आईपीओ शेयर उनको मिल रही है। जस्ट इनके 7 दिन के बाद में क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसके बाद में सबके साथ में आप 5% का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक में आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। यदि 17,85,000 जो प्री आईपीओ शेयर आप यहां बाय कर रहे हैं, यहां पर $140 पर मंथ के इंस्टॉलमेंट में, ये जस्ट यहां से 7 दिन के बाद में इनकी ग्रोथ 5% की जो वैल्यू ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग तकरीबन ये आपके 17,85,000 में से ये आपके 90,000 शेयर आपके कम होने वाले हैं। यदि 90,000 शेयर कम होते हैं, तो इनका मैं पोर्टफोलियो के अंदर कितनी बड़ी उछाल और कितनी बड़ी यहां पर डिक्रीज होने वाला है, जो लोग इनको समझते हैं तो उनको बखूबी समझ में आ जाएगी। यदि किसी एक पर्टिकुलर 17,85,000 में से यदि आप 90,000 आपका शेयर कम होता है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 17,85,000 तो नहीं मिलने वाला, तो आपको 16,95,000 ही आपको यहां पर मिलने वाला है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म और भी जाता है कि इसमें हमारा प्रॉफिट क्या हुआ और हमारा नुकसान क्या हुआ। प्रॉफिट ये हुआ, अभी जो लोग यदि इस पैकेज को बाय करते हैं, तो डेफिनेटली कि उनको 90,000 का शेयर का प्रॉफिट उनके खाते में आने वाला है। इससे क्या फायदा होगा, यदि 90,000 शेयर की मैं वैल्यू काउंट करूं और $1 से भी काउंट करूं, जब इनकी लिस्टिंग जो मिनिमम जो रेट है, जो इसकी लिस्टिंग तो होनी है, तो $90,000 होता है। और $90,000 की मैं काउंटिंग करूं
तो आज के दिन में आपके कम से कम नहीं तो 72 लाख रुपए का आपकी ये संपत्ति बन सकती है, यदि जिस दिन ये लिस्टेड होगी। और ये सोच यदि किसी के पास में अभी भी नहीं आ रही है तो उनके लिए वेट एंड वॉच है, मगर जो लोग इसका डिसीजन ले चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही शानदार जरिया है। मगर जो लोग इसको चूक रहे हैं तो उनके लिए क्या नुकसान होने वाला है, उनके पास में 90,000 शेयर का नुकसान होने वाला है, जिससे क्या होगा 72 लाख रुपए का, मैं $1 की कैलकुलेशन में बता रहा हूं, 72 लाख रुपए का नुकसान होने वाला है। और कोई आदमी यदि बीटीसी एथेरियम के बारे में विश्वास करता है तो बीटीसी के कैलकुलेशन में उनके अकॉर्डिंग कम से कम 1.5 बीटीसी का नुकसान होने जा रहा है, एथेरियम के कैलकुलेशन में कम से कम 30 एथेरियम का नुकसान करने जा रहा है। तो मेरा जो कैलकुलेशन ये कहता है कि यदि आप बीटीसी की भाषा में समझते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, इथेरियम की भाषा में प्रॉफिटेबल है, मगर डिपेंड ये करता है यदि आप इन चीजों को इतने बड़े लेवल पे नहीं ले सकते, छोटा पैकेज में भी जा सकते हैं। $70 पर मंथ की किस्तों में भी आपका प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से हर पैकेज के अंदर 5% की शेयर की वैल्यू यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जस्ट अभी जो मोमेंटम है, जिस तरीके से केवल हल्की सी दुबई एक्सपो के बाद में भी 5% की ग्रोथ आ सकता है, तो आप मेरी बातों से यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं जब हमारी रियल प्रोजेक्ट धरातल के अंदर एम्पायर होकर के जिस तरीके से हम लोग 3 कंट्री के अंदर खड़ा करने वाले हैं, जिसमें रशिया, दुबई और तुम्हारी इंडिया, तो इसके पीछे हर प्रोजेक्ट के लगते ही मैं बार बार यही बातें आप लोग कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट लगा उसके साथ में 10 की डिमांड बढ़ जाती है। 10 प्रोजेक्ट की मार्केट के अंदर वहां एम्पायर खड़ा हुआ तो 100 प्रोजेक्ट का मार्केट के अंदर ऑलरेडी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। 100 का लगने का मतलब 1000 जगह पे इनका डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरीके से जैसी जैसी इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो शेयर अभी आप 5% की ग्रोथ देख रहे हैं, तो कहने का मतलब एक दिन ऐसी भी कंडीशन आने वाला है कि एक शेयर मात्र यहां पर हो सकता है कि 500 इनकी जो लाइसेंस बिकते ही $1 का इजाफा इस शेयर के अंदर इसकी जंपिंग ग्रोथ आपको देखने का मौका मिल जाए। तो कहने का मतलब जो लोग अभी प्री आईपीओ को हल्के वे में ले रहे हैं उनकी फ्यूचर की मैं बात बता दूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक ऐसा खजाना जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, इसकी डिमांड की वजह से ऑटोमेटिकली इनकी शेयर की ग्रोथ इसकी कब डॉलर में चेंज होकर के $1, $2, $10, $20, $25, $30 ये ग्रोथ आ जाएगी। आपको दिन ब दिन आपको धीरे धीरे टाइम का पता भी नहीं चलेगा और ये दिन कब निकल जाएगा आपको धीरे धीरे करके महसूस भी नहीं होगा। मेरे पास इतना सा भी है, बाकी मैं इतना सा कहना चाहूंगा, पैकेज काफी है, कैलकुलेशन आप अपने खाते में कर सकते हैं। किसी के पास में 54,000 का अभी यदि कैलकुलेशन चल रहा है तो उनके खाते में इसका 5% शेयर उनका कम हो जाने वाला है, यानी कि तकरीबन मान के चलो 52,000 के समथिंग रह जाएगा। और यदि किसी के पास में 4 लाख का है तो उसका 4 लाख का 5% समथिंग वो कम हो जाएगा। और किसी के पास 7 लाख के समथिंग है तो 7 लाख का 5% 35,000 शेयर समथिंग वो उनका कम हो जाएगा। तो हर पैकेज के अंदर 5% की शेयर उनका कम होने वाला है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके शेयर की जो क्वांटिटी कम होती जाएगी, इसकी रेट बढ़ती जाएगी और इनका जो आने वाला टाइम का जो इनकी जो 10% हमारी जो शेयरिंग है वो ऑटोमेटिकली इसी 10% के अंदर ये चीज खरीदते करते आज जो लोग 17 लाख शेयर मात्र 1300 यानी कि $100-1,400 में यहाँ पर बाय कर रहे हैं, यही चीजें खरीदने के लिए आने वाला टाइम में ये हो सकता है कि आपको 40 लाख रुपए पेड करना पड़े। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, डिमांड का जमाना है और डिमांड की टेक्नोलॉजी है और डिमांड के अकॉर्डिंग अपने माइंड को दौड़ा दिया तो आपका पोर्टफोलियो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिमांडेबल पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ में मैं दोबारा करके मोहित जी के पास जाऊंगा, बाकी का इन्फॉर्मेशन दोबारा करके फिर मैं रिव्यू करने के लिए मोहित जी को प्लीज मोहित ऑन द स्टेज। ऑलराइट सर, लेट्स टेक। ओके, तो कंक्लूजन अभी समझ में आया होगा, राइट? वो 5% प्राइस जब इंक्रीज होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? और यस प्लीज, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, राइट, हम लोग बिल्कुल अब ये तो हमें दिख गया कि भैया वीटर क्या है, कैसे कैसे हुआ, कहाँ का एग्जीबिशन हुआ, क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हो रहा है। अब अल्टीमेटली वीटर है क्या चीज, ओके, ये हम लोग जल्दी से 5 लाइनों के अंदर जान लेते हैं।
ऑलराइट। और मैं अपनी स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि उन 5 पॉइंट्स के अंदर हम लोग किसी भी नए इंट्रोड्यूसर को, राइट, किसी भी नए पर्सन को हम लोग किस तरीके से उसको गाइड कर सकते हैं। ओके, या यूं कहिए कि वो वीटर पावर प्रोजेक्ट का 5 लाइन के अंदर मैनुअल है, राइट, जिसमें हमारे चैप्टर वाइज चैप्टर होते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो 5 लाइन मीन्स 5 चैप्टर हैं जिनको आप उसको पूरा का पूरा वीटर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। विपुल जी प्लीज बताइएगा आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। जस्ट अ मिनट। राइट, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है अभी, ठीक है विपुल जी, वेरी गुड। राइट, ऑलराइट, ओके, तो ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट इन द सेंस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और इसको इसी फॉर्मेट्स के अंदर, जैसे हम लोग कोई किताब देखते हैं ना, लेसन नंबर 1 इसके अंदर ये कंटेंट है, लेसन नंबर 2 इसके अंदर ये कंटेंट है, लेसन नंबर 3 इसके अंदर ये कंटेंट है, राइट, या अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, 3, 4, 5, ओके, इस तरीके से टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, बहुत ही नट शेल के अंदर, ओके, हम लोग चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो यही देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग वीटर इन द 5 स्मॉल पॉइंट्स। पहला है वीटर, दैट इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल, इन्वेंटेड बाय मिस्टर डेनिस टैगलिन, राइट, पेटेंट इन रशिया। ओके, और जब हम रशिया बात करते हैं, पेटेंट इन रशिया की बात करते हैं, तो इट मीन्स कंपनी भी रशिया से है, ठीक है, वीटर जो इन्वेंशन है वो भी रशिया से है। ओके, और जिन्होंने इसको टैगलिन इसके जो सीईओ हैं, मतलब ओवरऑल जो इसके ऑरिजिन वो रशिया से। ओके, origin of the Vita technology is from the Russia. ओके, आगे चलते हैं अभी, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जनरेट मतलब ये काम क्या करती है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एयर प्यूरिफाई, क्रिएट रेसिडेंशियल स्पेसेस एंड रिस्टोर एनवायरनमेंट। 4 काम है इसके पास। क्या क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है हवा से, हवा को प्यूरिफाई भी कर रही है, रेसिडेंशियल स्पेसेस क्रिएट कर रही है, जैसे 2-3 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ओके, पेंट हाउस, कैसे ये रेसिडेंशियल स्पेसेस भी क्रिएट कर रही है। ओके, लेकिन सबसे आधुनिक जो काम है इसका, वो मैं मानता हूँ इसका एनवायरनमेंट को रिस्टोर करना। ओके, इस काम को कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी आप उठा के ले आओ, इस काम को कोई नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी प्रकृति के सामने हार जाती है। ओके, लेकिन इसके अंदर जो एनवायरनमेंट रिस्टोर होगा वो भी स्लो प्रोसेस है, बहुत लंबा समय चाहिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। ओके, किसकी बात कर रहा हूँ? जो ओजोन डिप्लीशन होती है पॉल्यूशन की वजह से, राइट, और ओजोन की लेयर को फुलफिल कर पाना, जब हम पॉल्यूशन को कम कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो ओजोन का जो लेयर है वो अपने आप मतलब बंद होता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओजोन डिप्लीशन खत्म हो जाएगा। ओके, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो हमारी इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जैसे उसका सबसे बड़ा जो खतरनाक इफेक्ट पड़ता है दैट इज ग्लेशियर। भैया हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, शहर के शहर डूब रहे हैं। ओके, इस चीज पे हम लोग इस ओके, सब कुछ जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन। और अगर हमने पॉल्यूशन की चेन को ब्रेक कर दिया ना, तो इकोलॉजी हमारी, एनवायरनमेंट हमारा रिस्टोर होने लगता है। प्रकृति के सभी जीव जंतु जो क्लाइमेट चेंज की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं, राइट, या जो हो चुके हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो होने के कगार पर हैं वो बचे रह जाएंगे। ओके, ये एक इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है, हवा को शुद्ध करेगा, राइट, जैसे कि हवा शुद्ध कहते हैं, अरे यार ये कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो बताता हूँ आपको। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस, राइट, वेरी गुड। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? शुद्ध हवा का इफेक्ट। आज आप जयपुर में रह रहे हो, राइट, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, राइट, कोई कानपुर में रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है, ओवरऑल दुनिया के किसी भी सिटी में चले जाओ, पॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, जो बंदा सिटी के अंदर रह रहा है और जो बंदा किसी गांव में, देहात में रह रहा है, राइट, या फिर ये कहें कि
जहाँ पर माउंटेन रीजन्स होती हैं, ठीक है, पहाड़ी पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर, राइट, यहाँ के लोगों की जो हेल्थ होती है, राइट, इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनका, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो क्योंकि क्योंकि वहां पे सब कुछ प्योर है, सब कुछ प्योर है। ओके, तो जिस वजह से उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है जो सिटी में रहने वाले जो इंसान होते हैं, राइट, जैसे कि आप, हम, सब लोग जानते हैं। ओके, वहां पे उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 60 से 70 साल की होती है, लेकिन लेकिन जहां पर सब कुछ शुद्ध होता है ना, वहां पर उनकी एवरेज लाइफ ही 80 to 100 होती है, या कह ले 90 to 100 होती है, और कभी कभी 100 से भी ऊपर चली जाती है। ओके, तो ये जो इफेक्ट है पॉल्यूशन, ओके, और इस इफेक्ट को ये टेक्नोलॉजी बराबर कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। तो ये इसकी अच्छी तकनीक है, ओके, जिसकी पूरी की पूरी दुनिया को डिमांड है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला 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 सब जगह देख रहे हैं भैया, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, ऐसे करके। ओके, क्यों? वो तो एक ना एक दिन खत्म हो रहा है, आज नहीं खत्म होगा, 2-4 साल बाद खत्म हो जाएगा, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म तो होना है। ठीक है, तो और ये हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। हवा कभी खत्म नहीं हो सकती इस धरती से। क्यों नहीं खत्म हो सकती? राइट, क्योंकि अगर हवा खत्म हो गई तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब खत्म। ओके, और इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म भी है, जब एक बार हवा चलती है, रुकती है, तो जब वो हवा नहीं होती उस टाइम पे, मीन्स आप और हम लोग तो उसे महसूस कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए अगर अगर विटर पावर प्रोजेक्ट के लिए अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट, 4 माइल प्रति सेकंड की जो हवा है, जो अगर इतनी नहीं है, तो उस केस में भी इसका जो मैकेनिज्म है, इसका रिवर्स मैकेनिज्म है, वो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टरबाइन को रोटेट करके कराकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ओके, तो ये वो चीज है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इसका शेयर्स। बॉस 314 बिलियन शेयर है इसके पास में, कंपनी के पास में। ओके, अब लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत सारे हैं, खत्म कैसे होंगे? राइट, ये तो बहुत सारे हैं, खत्म कैसे होंगे? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका बताने का कि सर इसमें से सिर्फ 10% शेयर ही जाने हैं एज ए प्री आईपीओ शेयर, जिसमें कि आप, हम लोग, एक सेकंड विपुल जी, एक सेकंड, जिसमें कि आप और हम सब लोग बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एसेट बना रहे हैं, सिर्फ कितना? 31.4 बिलियन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने हैं प्री एज ए प्री आईपीओ शेयर। ओके, यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, जो आपका शेयर है, राइट, प्री आईपीओ शेयर हो, आईपीओ शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, व्हाटएवर, ओके, लेकिन अभी जो अगर इसकी करंट स्टेटस देखें कि भैया कहाँ पर अप्रूव, ऐसी कौन सी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो जो चीज लिस्ट ही नहीं हुई, राइट, जो चीज लॉन्च ही नहीं हुई, उसको किसने अप्रूवल दे दिया? विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके, तो ऐसी कौन सी संस्था है जिन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया? ओके, दैट इज जायंट स्टॉक कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ रशिया। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? यस यस, राइट। हाँ, मुझे ना चेक करना पड़ता है। ओके, हाँ, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर ए सेकंड बॉस। मेरी आवाज आ रही भी नहीं आ रही? ओके, आगे चलते हैं। तो भैया ज्वाइंट स्टॉक कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ रशिया से अप्रूव्ड है शेयर। ओके, ये इसका स्टैंपिंग वगैरह सब कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की पर आता है, जो कि एक लीगल एविडेंस भी है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसका एक प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है उसका। ओके, और आगे चले, 119.32 बिलियन शेयर जो है वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसको हम लोग आईपीओ भी बोलेंगे। ओके, बाकी के बचे हुए शेयर्स जो हैं यहीं पर कंपनी के पास में रहेंगे। ओके, आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। टोटल इसके अंदर 14 प्रोग्रेसिव स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि इसके अंदर जो इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट, जैसे ही जो इसके प्रोजेक्ट डिलीवर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका एक सेल काउंट होता चला जाएगा। ओके, और अभी हम लोग फोर्थ स्टेज के अंदर है, 14 स्टेज के अंदर से। ओके, और आप ये कहें कि 3.2 अब जो है वो 3.3 स्टार्ट होगी 7 दिन बाद, मतलब 25। पांचवें पॉइंट में चले। पांचवा पॉइंट है अर्निंग एक्टिव इनकम फ्रॉम द एफिलिएट प्रोग्राम।
जिसमें कि 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां से हम लोग पैसिव इनकम को अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव इनकम, राइट। इसके बाद में ये प्रॉफिट शेयर एंड डिविडेंड्स के अंदर कंप्लीट होगा, राइट। ये जो फोर्थ पॉइंट है एफिलिएट इनकम, ये हम लोग जानते हैं विपुल जी के माध्यम से। विपुल जी प्लीज, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस राइट। हाँ, एफिलिएट प्रोग्राम प्लीज। थैंक यू। एफिलिएट प्रोग्राम में दोस्तों ऐसा है, जैसे कोई भी आदमी इस सिस्टम के साथ में, हमारे साथ में अभी 2 मॉड्यूल में काम करते हैं, राइट। पहला मॉड्यूल तो हमारा ये है पैसिव इनकम। जो भी लोग यहाँ पर इस प्री आईपीओ को बाय कर रहे हैं, तो हमारा पैसिव इनकम का सारा सिस्टम है, जिसके अंतर्गत आप लाइफ टाइम यहाँ पर, जब तक आपके पास में शेयर यहाँ पर होल्डिंग रहेगा, तो यहाँ डिविडेंड फंड के तौर पे आप कंटिन्यू यहाँ से लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट करते रहेंगे। उसके साथ में शेयरिंग प्रॉफिट, जो भी लोग को ओनर है, तो डेफिनेटली कि यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट, जिनके पास में जितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग आप शेयरिंग प्रॉफिट आप लोग लेते रहेंगे। एक शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, जो भी प्रॉफिट होगा और आपके पास में जितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट दी जाएगी। तो पहला प्रॉफिट है शेयरिंग प्रॉफिट, दूसरा आपका पैसिव इनकम। जब तक आपके पास में शेयर होल्डिंग रहेगा, तो आप कंटिन्यू यहाँ से यहाँ डिविडेंड फंड के तौर पे कंटिन्यू यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये हो गई 60% की ग्रोथ। हम जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं, उस निवेश का 60% टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है, जिसके अंतर्गत आपको सारी इनकम दी जाती है, डिविडेंड फंड प्लस शेयरिंग प्रॉफिट की इनकम। इसका जो दूसरा जो पार्ट है, 60% की कैलकुलेशन मैंने ये समझाई, बाकी रहा 40%। 40% में कैलकुलेशन में ये आता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर एक्टिव इनकम करना चाहता है, कोई कहता है सर ये तो फ्यूचर की इनकम है, आज के लिए मेरे पास में क्या है, अभी के लिए मेरे पास क्या इस सिस्टम में क्या है जो मैं यहां से कंटिन्यू पैसा कमा सकूं और साथ में पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकूं। दोस्तों ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इसके अंदर आपको एक बहुत शानदार जानदार एक मौका आपको दिया जाता है, जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम के अंदर ये कोई जनरेशन या बाइनरी वाला से कोई प्लान नहीं है, एक बहुत सिंपल मॉडल के अंदर ये चीज बनाई गई है। जब भी आप किसी को इस सिस्टम के बारे में बताते हैं, तो डेफिनेटली कि यहाँ हर कोई व्यक्ति को ओनर है, तो वो क्या है $100 से लेकर के $65,000 तक कोई भी आदमी यहाँ निवेश कर सकता है, उसकी पैकेज को बाय कर सकता है। यानी कि $100 के निवेश से लेकर के $65,000 की राशि के बीच में जो भी राशि और भी है, तो कोई भी आदमी बाय कर सकता है। आपने क्या किया, आपने केवल उनको एक नॉलेज अपने शेयरिंग की कि एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया के अंदर ये 3 चीजें क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी और क्या हवा को साफ करेगा, और यहाँ पर रियल एस्टेट का नया मॉडल भी तैयार करेगा, जिसमें बहुत सारी खूबी है। उनको समझ में आई, उसने चीजों को पैकेज को बाय किया, उसको तुरंत 500 शेयर उनको गिफ्ट मिला, मगर उसके अलावा उनको मिला 500 शेयर गिफ्ट। आपको तुरंत इसके बदले में क्या मिलेगा, जैसे ही कोई पैकेज वो बाय एक्टिवेट कर लेता है, कोई बाय कर लेता है, तो तुरंत आपके बाद आपके साथ में वो होती है डॉलर या रूबल के रूप में आपके पास में 10% की आपकी इनकम जनरेट होती है। यदि 10% की इनकम आपको जनरेट हुई, तो दोस्तों आपके ऊपर भी कोई इंसान है, तो उसी सिस्टम के बदौलत उनको भी 5% की इनकम जनरेट होती है। तो उनके ऊपर भी कोई आदमी होगा तो उनको 2% की इनकम जनरेट होती है। उसके अलावा बाकी जितने भी ऊपर लोग हैं, यानी कि वहां 2% के बाद में जितने भी लोग हैं, यानी कि हो सकता है कंपनी तक 10 लोग बीच में हो या 20 लोग बीच में हो या 15 लोग बीच में हो, तो 15 या 20 लोगों को बाकी का जो 23% बचा, मैंने 40 में से 17% का कैलकुलेशन समझा दिया, 10%, 5%, 2%, बाकी बचा 23%। वो 23% उन लोगों के अंदर बांट दिया जाता है जो बाकी 10, 5, 2 के अलावा ऊपर जो लोग हैं, तो उन लोगों को वो 23% ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसके अंदर कोई गणित बाइनरी जनरेशन मैचिंग फैचिंग का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर एक आदमी भी यदि किसी को आपने इन्वॉल्व करवा दिया, तो उस इंसान के माध्यम से यहाँ पर हजारों लाखों डॉलर यहाँ पर आप कमा सकते हैं। कहने का मतलब आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर आप इसको एक ऐसी संरचना आप देख पा रहे हैं जिसके अंतर्गत आपकी इनकम के लिए कोई मैचिंग फैचिंग की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपकी पोर्टफोलियो संपत्ति बनेगी वो अलग और आपकी इनकम आएगी वो अलग। ये 3-4 चीज आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंदर आपको देखने का ये मॉडल सारा मिलता है। कहने का मतलब बहुत ही छोटा सा है। एक्टिव इनकम के तौर पे आप एक पर डे, पर वीक,
पर मंथ यहाँ पैसा कमा सकते हैं और उसके साथ में पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। और पैसिव इनकम के तौर पे जैसे ही लिस्टिंग हो जाएगा तो पैसिव इनकम के तौर पे जिंदगी भर जब तक आपके पास में शेयर रहेगा तब तक आप यहाँ पर पैसिव इनकम कंटिन्यू ले सकते हैं। इसी के साथ में दोबारा करके फिर मोहित जी के पास जाऊंगा। प्लीज मोहित। थैंक यू। ऑलराइट विपुल जी, वेरी गुड, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ओवरऑल चीजों को समझने में आपको हेल्प मिली होगी, क्या कुछ होने वाला है, राइट। और अब हमें स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। कौन सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? दो चीजें। एक तो जो हमारी टीम्स के अंदर जो इंस्टॉलमेंट ड्यूज आ रही है, राइट, उनको फुलफिल कराते हैं। पहला टास्क हमारा हम लोगों का ये भी है, और ये टास्क कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये टास्क हमेशा, जब तक कि इसके सारे के सारे जो 14 स्टेजेस कंप्लीट नहीं हो जाते, ये टास्क हमेशा चलता रहेगा। ओके, लेकिन दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उसकी मैं बात बता देता हूँ आपको। वो बात है बॉस आपकी कि हमें नई रिक्रूटमेंट्स लेके आनी पड़ेंगी, राइट। ऑब्वियसली नई रिक्रूटमेंट से क्या होगा, हमारी टीम साइज बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, राइट, और हम लोग अपने पोर्टफोलियो को और स्टेबिलिटी के साथ में बड़ा बना पाएंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें थी, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। लेकिन जो मेरा थर्ड टॉपिक है, ओके, जो कि 20% वर्सेस 80%, ओके, तो प्लीज इसके लिए समय नहीं है, बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है वो। ओके, वो बेसिकली यूनिटी की बात है, और यूनिटी किस तरीके से काम करती है, मैं उस पर एक बार चर्चा करने वाला था। ओके, और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को हम लोग फिर कभी किसी और दिन समझें, राइट। यूनिटी फैक्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है 20% और 80% की रेशियो के अंदर, राइट। होपफुली हम लोग कल इसको समझेंगे, और जो कि दुनिया भर के सभी देशों पर, दुनिया भर के हर एक जीडीपी कह लो या फिर कुछ भी कह सकते, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, व्हाट एवर, जो ऊपर अप्लाई होता है। ओके, तो होपफुली ये सब लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यूनिट फैक्टर काम करता है, यूनिटी फैक्टर काम करता है, राइट। ये एक बेसिकली बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है, इसको हम लोग होपफुली कल कवर करेंगे। कल ट्यूसडे है, राइट, और इस वाले वीकेंड का आखिरी दिन है। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही रखें। ओके, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, जो था इम्पोर्टेंट वो हम लोग आज स्टार्टिंग के अंदर ही चर्चा कर चुके थे, राइट, चर्चा कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग होपफुली कल हम लोग मिलते हैं, राइट, और कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ में हम लोग आपके साथ हाजिर होंगे। और यस प्लीज, और तब तक जो हमारे जो 2 टास्क है, रिक्रूटमेंट्स एंड पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स, इसको हम लोग कंप्लीट कराते हैं अपनी टीम में, राइट। यही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए लीडर की, लीडिंग लीडर्स की, राइट, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समय से पूरा करते रहिए। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। ओके, तो प्लीज कल हम लोग मिलते हैं। आज मैं सेशन को 2 मिनट पहले बाइंड कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। टाइगर सिंह जी प्लीज कल मिलेंगे। नाइस डिस्कस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सर।